दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 300, आर्टिकल 300 एंड 300A। चलें स्टार्ट करें। आर्टिकल 300 क्या कहता है? आर्टिकल 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स के बारे में। सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, संविधान का अनुच्छेद 300, संविधान का अनुच्छेद 300 बताता है वाद और कार्यवाहियों के बारे में। वाद और कार्यवाहियाँ क्या हैं उनके बारे में बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 300 सेज अबाउट सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। Number 1, the government of India. Number 1, the government of India may sue or be sued by the name of the Union of India. Number 1, the government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the government of state. May sue or be sued by the name of the state and may subject to any provisions which may be made by act of parliament or of the legislature of such state, enacted by virtue of powers conferred by this constitution. Conferred by this constitution, sue or be sued in sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and corresponding provinces or the corresponding Indian state might have sued or between sued if this constitution had not been enacted. क्या कहा जा रहा है? दोबारा पढ़ लेती हूँ। आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 300 says about suits and proceedings. Number 1, the government of India may sue or be sued by the name of the Union of India and the government of state may sue or be sued by the name of the state and may subject to any provisions which may be made by act of parliament or of the legislature of such state, enacted by virtue of powers conferred by this constitution. Sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding provinces or the corresponding Indian states might have sued or been sued if this constitution had not been enacted. Number 2, if at the commencement of this constitution, if at the commencement of this constitution, if the commencement of this constitution, number A, any legal proceedings are pending to which, any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings. And B, number B, any legal proceedings are pending to which a province or an Indian state is a party, the corresponding state shall be deemed
to be substituted for the province or the Indian state in those proceedings. Chapter 4th, Right to Property. Article 300A, persons not to be deprived of property save by authority of law. क्या कहा जा रहा है? अनुच्छेद 300 का कहता है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अध्याय 4, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था? पहले ये संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, नागरिकों का फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था। इसको 300 अनुच्छेद 1 के तहत क्या किया गया? संविधान का 44वां संविधान संशोधन करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। पहले एक फंडामेंटल राइट था, एक मौलिक अधिकार था, इसको लीगल राइट बना दिया। प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया और 1979 को ये नया आर्टिकल 300A जोड़ा गया। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 300 क्या कहता है? वाद और कार्यवाहियों के बारे में। वाद और कार्यवाहियाँ क्या हैं, इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 300 बताता है। नंबर 1, भारत सरकार या भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, और ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि ये संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन और तत्स्थानीय प्रांत या तत्स्थानीय देशी राज्य वाद ला सकते थे या उन पर वाद लाया जा सकता था। क्या कहा जा रहा है? यदि भारत का संविधान नहीं होता तब क्या होता? जो भी देशी राज्य थे उनके शासक वाद ला सकते थे या उनके द्वारा वाद लाया जा सकता था, लेकिन अब हमारा संविधान है, एक स्वतंत्र राज्य है, यहाँ पे देशी राज्यों का विलय हो चुका है। सभी संघ में शामिल हो चुके हैं। अब जितने भी देशी रियासतें थीं वो सब संघ में शामिल हुए हैं और उन सब का अंत हो चुका है। अब क्या होगा? जब भी कोई वाद लाया जाएगा तो वो या तो संघ भारत की सरकार लाएगी या फिर राज्यों की सरकार वाद ला सकेंगी। क्या कहा जा रहा है? भारत सरकार भारत संघ के नाम से, क्योंकि जो भारत की सरकार है वो क्या करेगी? कोई भी वाद होगा, मुकदमा जो दायर करेगी तो भारत संघ के नाम से ला सकेगी। जैसे आपने सुना होगा कि यूनियन का नाम आता है, जब भी कोई मुकदमा दायर होता है या कोई भी केसेस होते हैं तो एक तरफ भारत सरकार होती है या फिर अन्य राज्य सरकारें भी होती हैं। जैसे वर्सेस लिखा होता है, यूनियन वर्सेस स्टेट या यूनियन वर्सेस
कुछ भी ऐसे करके। तो कहने का मतलब यह है भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। किसी राज्य की सरकार उस राज्य के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा, ऐसे उपबंधों के अधीन रहते हुए जो इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित संसद के या ऐसे राज्य के विधानमंडल के अधिनियम द्वारा किए जाएं, वे अपने अपने कार्यकलाप के संबंध में उसी प्रकार वाद ला सकेंगे या उन पर उसी प्रकार वाद लाया जा सकेगा जिस प्रकार यदि यह संविधान अधिनियमित नहीं किया गया होता तो भारत डोमिनियन तत्स्थानीय प्रांत या तत्स्थानीय देशी राज्य वाद ला सकते थे, उन पर वाद लाया जा सकता था। अब मैं इसको पढ़ लेती हूँ। अमेंडमेंट क्या हुआ है इस पे। नंबर 1, सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976 S2 for Article 297 WEF 27/5th 1976. Number 2, substituted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S20 for Article 298. Number 3, the words or Raj Pramukh omitted by S29 and Schedule Evid. Number 4, the words nor the Raj Pramukh omitted by S29 and such Evid. अब मैं पढ़ लेती हूँ चैप्टर 4, राइट टू प्रॉपर्टी। 300A, persons not be deprived of property say by authority of law. No person shall be deprived of his property say by authority of law. अध्याय 4, संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 300 का कहता है विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 34 द्वारा 20/6/1979 से अंतः स्थापित। Inserted by the Constitution, Number 1, inserted by the Constitution 44th Amendment Act 1978 S24 WEF 20/6/1979। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मुझे दे इजाज़त, मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। प्लीज़ संविधान को ज़रूर पढ़ें। संविधान की अपने अपने घर में एक कॉपी ज़रूर रखें और संविधान को पढ़ें, जागरूक बने, आडंबर, मूर्खता, पाखंड से बाहर निकलें। इसको मूर्खता, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए संविधान बहुत अच्छा आपका साथी है, आपका गुरु है, जो आपको बाहर निकाल सकता है इन सब चीज़ों से। संविधान पढ़ें और अपना ज्ञान अर्जन करें। ठीक है दोस्तों, कल मैं मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ, यानी कल मैं भाग 13 पढ़ूंगी। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। पार्ट 13, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ूंगी। तो ठीक है, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।